So you all know that your bone marrow is the house for the formation of different types of WBCs as well. So we had learned in the last class that depending upon the granules that are present, WBCs are divided into two types. Your WBCs are divided into two types. One is your granulocytes and another one is your agranulocytes. Agranulocytes. In the granulocytes, we had learned that depending upon the dye by which they are stained, that means they take the color of the stain, they love either the acidic dye or the basic dye, or they are neutral, both the dyes. Depending upon that, they are of three types. One is your eosinophil. Second is your basophil. And third one is your neutrophils. So we will learn about the functions of these. हमने पढ़ लिया था इनकी न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है. न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, that is 60 to 65%. After that, your eosinophil in case of granulocyte 2 to 3%, and basophil they are usually 0.5 to 1%. So eosinophil is responsible for all the allergic reaction, whether वो डस्ट से हो रहा है, पोलन ग्रेन से हो रहा है, जितने भी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, एलर्जी हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, the number of eosinophil will rise. So it increases during allergic reaction. For example, asthma, maybe ये rise हो जाएगा, as well as eosinophil is also responsible for parasitic infection in our body. Let me make you understand. Parasitic infection. That means if in the small intestine, ये नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा आप लोगों को, just a minute. If in the small intestine by anyhow any worms comes, worms आ जा रहे हैं, तो इस worm को destroy करना हमारे eosinophil का काम है. उस तरीके से इसको पूरा सराउंड करके और पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ता है. कितने भी कैसे भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो हमारे बॉडी में, तो eosinophil attacks worms and destroy them. That is one of the important phenomenon, important function of the eosinophils, that they are responsible for parasitic infection. That means they attack and destroy worms. कैसे भी worms, बहुत सारे worms हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं by anyhow. Ascaris simplest है, you all know. तो उनके अगेंस्ट वर्क करता है कौन सा WBC? That is your eosinophil. WBC, you all know that they are the army of our body which fight against the various infections. So when we talk about the allergic reactions, when we talk about the parasitic infection, then your eosinophil becomes active, one of the type of the WBCs, and act against them. Another important granulocyte is your basophil. Basophil, basically there are mast cells are present. मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको बोर्ड भी दिखे. There are mast cells which are present throughout our bodies. जैसे जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन सब के सरफेस पे मास्ट सेल्स, वहां है मास्ट सेल, सरफेस पे नहीं, मास्ट सेल प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यूज में. Either it's the skin, नोज, लंग्स, हर जगह मास्ट सेल्स हैं. एंड मास्ट सेल का रोल क्या है? जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, आई एम यूजिंग अनदर टर्म, इन्फ्लामेशन. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लामेशन. Whenever
there is inflammation in our body, then the mast cell, they releases chemicals. Chemicals release करते हैं, and the three chemicals that are being released by the basophil, that is the mast cell. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेसोफिल्स जब टिश्यूज को एंटर कर रही हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपसे बोला कि कैसे टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, तो दे रिलीज सर्टेन केमिकल्स. व्हाट आर द केमिकल्स दैट आर बीइंग रिलीज्ड बाय द बेसोफिल? तो बेसिकली three chemicals are being released by the basophil. One is your heparin. The second one is your histamine. And the third one is your serotonin. Now, heparin, you all know, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि the blood, when it circulates in our blood vessels, in our circulatory system, blood vascular system, they will never coagulate. Why? Because of the presence of natural anticoagulant in the blood, and that is your heparin. Heparin is a natural anticoagulant. So what is your heparin? It's a natural anticoagulant. Now your histamine. मैंने बोला कि ये बेसोफिल ये केमिकल्स तब रिलीज करते हैं जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तब हमें बेसोफिल की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन हो गया है हमारे बॉडी को, अस्थमा से ही लेते, वहां पर भी क्या अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है. बहुत लोगों को पॉल्यूशन से, डस्ट से, पोलन ग्रेन से, उससे भी अस्थमा होता है. तो क्या करते हैं, अस्थमिक पेशेंट को बहुत जल्दी कूल डाउन करने के लिए हम उनको मेडिसिन नहीं, हम उनको क्या देते हैं, वैसोडायलेटर्स. तो क्या होता है, एक्चुअली जो ब्रोंकाइल्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं, सॉरी, ब्रोंकोडायलेटर्स. डायलेटर्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स, एज यू नो कि उनके जो विड्थ होती है वो बहुत नैरो होती है. तो अगर कोई पाथवे, अगर कोई रोड, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर के रोड्स है बहुत सारे, बहुत पतला है, तो बहुत एक दो सोल्जर्स ही वहां से जा पाएंगे. बट हमें उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पर इन्फेक्शन है, वहां पर पूरी की पूरी फौज भेजनी है. तो वी हैव टू वाइडन द ब्लड वेसल्स. तो इस ब्लड वेसल को वाइडन करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए, वी नीड अ केमिकल, एंड दैट इज योर हिस्टामाइन. ये क्या करता है, ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को. So in a go, a number of WBCs, a number of army, that जो हमारे बॉडी की आर्मी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, रस at that particular place. तो ये क्या है, ये वैसोडायलेटर है, it dilates the blood vessels. और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि लंग्स के इधर भी प्रेजेंट है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है हर जगह है, स्किन पे है, तो जिधर भी जरूरत होती है वहां ये बहुत सारा आर्मी, WBC का आर्मी लेके जाता है. अब अगर कहीं पे नॉर्मल सा सिचुएशन था, थोड़े थोड़े ब्लड फ्लो कर रहे थे, अभी ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहे, तो क्या होता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, यू कैन सी ईदर देयर इज स्वेलिंग, ईदर देयर इज रेडनेस. दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ब्लड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. So that is your inflammation. Inflammation का मतलब होता है swelling, redness due to infection. So what is your histamine? Histamine क्या करता है? It's a vasodilator. It dilates blood vessels. Now come to serotonin. Serotonin यहाँ नहीं पढ़ना है. Serotonin हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पढ़ाऊंगी ना. तो देयर आर सर्टेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इनहिबिट करते हैं, वो कहते नहीं आगे सिग्नल नहीं जाना है, इनहिबिटरी होते हैं. जैसे एसिटाइल कोलिन, यू ऑल नो, नॉन एफराइन, यू ऑल नो कि ये जो है ये क्या है, ये एक्साइटेटरी हैं. साइनैप्स जहां पर होता है न्यूरॉन्स के बीच में, तो आगे ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन को. ये वाला पार्ट जब मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी, वहां पढ़ाऊंगी सेरोटोनिन क्या होता है. बट यस, सेरोटोनिन इज आल्सो बीइंग रिलीज्ड बाय द योर बेसोफिल्स व्हिच इज वन ऑफ द WBC. ठीक है, तो ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, तो इधर मैं नहीं बता रही. चलो, न्यूट्रोफिल्स.
You all know about the neutrophils कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो अबंडेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. एंड व्हाट दे डू, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. दे इनगल्फ द वेरियस पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, सबको फिनिश कर देते हैं. तो न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? दे आर फैगोसाइटिक, दे इनगल्फ हार्मफुल पार्टिकल्स. दे आर फैगोसाइटिक, engulf foreign particles. These things we will learn in detail again in a chapter, that is हमारा 12th का वो है पार्ट, इम्यून सिस्टम. वहां और डिटेल में बताऊंगी इनके बारे में. ठीक है. सो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स तो हो गए. और ग्रैनुलोसाइट्स का फंक्शन, और ग्रैनुलोसाइट्स में सिर्फ दो ही थे. One is your lymphocyte and the another one is your monocytes. If you all remember, lymphocytes and monocytes. तो granulocytes की बात करते हैं. Lymphocytes and monocytes. After neutrophil, the second abundant was your lymphocyte, that is 20 to 25%. What does lymphocyte does? Lymphocyte produces antibodies. ठीक है. यहाँ पर दो तरह के सेल्स थे, मैंने आपको बताया था, बी सेल्स और टी सेल्स. बी सेल बोन मैरो में ही बनता भी था और बोन मैरो में ही मैच्योर भी हो जाता था. इफ यू रिमेम्बर द लास्ट क्लास डायग्राम. बट जब भी मैंने टी सेल बताया तो मैंने टी सेल बना तो बोन मैरो में, बट वो वहां पर मैचोमैन नहीं बना था. उसके लिए उसको थाइमस में जाना पड़ता है, एंड दैट इज योर टी सेल्स. तो लिम्फोसाइट्स हमारे डब्ल्यूबीसी में सिर्फ एक ये लिम्फोसाइट ही है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन. ठीक है. तो बी सेल्स एंड टी सेल्स, दे आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. बट lymphocytes क्या करता है? It produces antibodies. Produces antibodies. Antibodies are basically chemicals. ये chemicals होते हैं, and they are usually Y-shaped chemicals. ये Y-shaped के chemicals होते हैं. ये वाई शेप का केमिकल क्या करता है, ये मैं आज आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ आज के दिन में, कि ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ ऐसा क्या करता है, जो एंटीजन जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ क्लम्प करके एग्लूटिनेट कर जाता है. वी विल लर्न टुडे ओनली. ठीक है. ये पार्ट अभी मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ. मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स जो कि जिसका परसेंटेज था 6 to 8%, और जिसका आपको याद होगा कि न्यूक्लियस इसका किडनी शेप या बीन शेप था, मैंने आपको बताया था. दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर. इनगल्फ बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रिस. ये और बड़ा है. न्यूट्रोफिल तो ऐसे छोटे 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 करके खाता है सबको, ये सबको एक साथ ऐसे इकट्ठा करके इनगल्फ कर जाता है. तो मोनोसाइट्स, इसका क्या फंक्शन है? फैगोसाइटिक, इनगल्फ करता है सेलुलर डेब्रिस एज वेल एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, सारे पैथोजेंस. इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द WBCs की WBCs हमारे बॉडी में क्या कर रही है. जो पूरी आर्मी है WBC की, ये डिफरेंट वे में हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वेरियस डिजीजेस और एन इन्फेक्शन. तो फॉर एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, lymphocytes and monocytes completed. And then today we will start another topic of this chapter. ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड से ही रिलेटेड है. दैट इज ब्लड ग्रुप्स, द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. हमें पता है किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, कोई AB है, कोई A है, कोई O है. YO इज यूनिवर्सल डोनर, YAB इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर. क्या है उनके सरफेस पे दैट मेक्स देम
डिफरेंट, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी पे ही बेस्ड है हमारा ब्लड ग्रुपिंग भी। तो अभी जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये होता क्या है। फटाफट नोट डाउन कीजिए। ऐसा स्पेस है, हम WBC के पास प्लेटलेट्स भी करना था हमें, RBC हम कर चुके हैं, ये रहा हमारा WBC, एंड उसके बाद द थर्ड वन इज योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काउंट आपको पता है, WBC का सबसे कम होता था 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, बट योर प्लेटलेट्स आर 1.5 to 4.5, ठीक है, 1.5 to 3.5, बहुत जगह 4 भी लिखा रहता है, बट हमारे NCERT में प्लेटलेट्स का काउंट जो मेंशन है वो है, ऊपर कर देती हूँ, प्लेटलेट्स का काउंट जो मेंशन है वो है तुम्हारा 1.5 to 3.5 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, और मैंने बोला था ये सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स है। देयर इज अ लार्ज, बोन मैरो में ही एक बड़ा सा सेल बनता है, मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स की जब हम बात करेंगे तो बोन मैरो में ही, बोन मैरो, जो आपका बोन मैरो है यही एक बहुत बड़ा सा सेल बनाता है, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। और ये मेगा कैरियोसाइट जो है ये ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म अ नंबर ऑफ सेलुलर फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे सेलुलर फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, एंड दैट इज योर, जस्ट अ मिनट, पार्डन मी फॉर अ मिनट। So we are talking about the platelet. So what is the role of the platelet? Platelets are responsible for clotting of the blood after there is a cut और blood flow होता है, but there is a clotting time कि उस clotting time में हमारा blood जो है वो clot हो जाना चाहिए। clot का मतलब ही है एंटीजन, आज मैं बताऊंगी क्लॉटिंग का क्या मतलब है। और ये ब्लड क्लॉटिंग जो होता है जिसकी वजह से एक सरफेस पे जिधर भी कट होता है वहां पर एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे नेट का स्ट्रक्चर बनता है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, नॉर्मली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड दे आर इन द इनएक्टिव स्टेज, बट व्हेन देयर इज अ कट इन द टिश्यूज, टिश्यू डैमेज होते हैं, प्लेटलेट डैमेज होता है, तब वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एक्टिव कंपोनेंट। और दिस पूरा ये जो ब्लड क्लॉटिंग का पूरा एक प्रोसेस है, इट्स अ कैस्केड प्रोसेस, 12 फैक्टर्स वन बाय वन एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टेजेस हैं, and then the clotting of the blood takes place. So blood clotting is one of the important function of the platelets. Why we need platelet? For blood clotting. A decrease in the number of the platelets, जो ये नंबर है कि 1.5 to 3.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब होना ही चाहिए, but in certain persons ये नंबर कम होता है, and it leads to a disease thrombocytopenia. Thrombocytopenia का मतलब होता है a less, मतलब 1.5 से कम है ब्लड, बहुत कम है, 30, 40, 50,000। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो एक्सीडेंट मेट करते हैं तो उनका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता और बॉडी के ब्लड्स बहुत ज्यादा इन और वो बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिकली प्लेटलेट्स काउंट अगर कम होता है तो इट्स लीड टू अ डिजीज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है और ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट as thrombocytopenia, ठीक है। चलो हो गया, तो मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ब्लड ग्रुप्स पढ़ना है, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। ईच वन ऑफ अस, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो मेरा बॉडी हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे तुम्हारे किसी फ्रेंड का हो, मैं एक दो नाम ले लेती हूँ, जयवर्धन, अनिरुद्ध, आंचल, कोई भी हो, हम सारे लोगों के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उस सेल के सरफेस पे देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट। इट इज, ये सेल है,
इसके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं. These receptors are made up of proteins, mostly proteins, but carbohydrate से भी बने हुए होते हैं. So I can write ये जो receptors है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, ये क्या चीज से बना हुआ है? ये या तो प्रोटीन से बना हुआ है या तो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है. ठीक है. These surface antigen, these surface receptors, they act as a nameplate. जैसे हम जितने भी फ्लैट्स होते हैं सबके बाहर नेम प्लेट लगा होता है. ओ दिस बिलोंग टू मिस्टर एंड मिस्टर सिंह, दिस बिलोंग टू मिस्टर एंड मिसेस वर्मा. तो सबका अलग अलग है. वैसे ही हम आप हर किसी के बॉडी के सेल्स का अपना ये जो एंटीजन है, ये जो रिसेप्टर है सेल के, जितने भी सेल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में, हर सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है. ये रिसेप्टर किस चीज का बना हुआ है? ये एंटीजन किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स. और ये कैसे एक्ट करते हैं? इट एक्ट्स एज अ नेम प्लेट स्पेसिफिक टू मी. ये मेरा है, लाइक दैट. ठीक है. तो ये स्पेसिफिक होते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये स्पेसिफिक कैसे हैं. ये तुम्हारे नेम प्लेट के जैसे कैसे एक्ट करते हैं. इट एक्ट्स एज अ नेम प्लेट दैट इट बिलोंग्स टू यू. आपने कभी सुना होगा कि लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो हम टिश्यू मैचिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं. व्हाई इट्स एसेंशियल? अगर मैं हूं और कोई और है, हम हमारे सेल के सरफेस पे सेम रिसेप्टर ही प्रेजेंट है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? किसी का भी उठा के किसी में भी ट्रांसप्लांट कर दो. बट इट्स नॉट लाइक दैट. One of the specific characteristic of our immune system is that it can recognize between self and non-self. अगर बाहर से कोई भी सेल एंटर करता है किसी पर्सन का, मतलब अगर मैं हूं, मुझे ओम अपना सेल दे रहा है बाय एनी हाउ, तो वो ओम का है. मेरा बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा. बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, सबको फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा, क्योंकि सबके सरफेस के जो रिसेप्टर्स हैं, एंटीजेंस हैं, वो डिफरेंट होते हैं. और इसी वजह से रिजेक्शन हो जाता है. हर किसी के ऑर्गन को, हर किसी के सेल को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है ना. ये तो हो गई हमारे सेल की बात कि ये स्पेसिफिक है हमारे बॉडी सेल, हमारा बॉडी सेल. बट हमारे बॉडी में एक बहुत ताकतवर, ऐसे तो ताकतवर ये नहीं दिख रहा है, इसके हाथ थोड़े अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा बाइसेप ट्राइसेप्स बने हुए, एकदम खुश खुश यहाँ पे बैठा हुआ है. ये है WBC. ये है WBC. ये क्या करता है? अभी अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके सरफेस पे जो एंटीजन है वो डिफरेंट है. उसको हमारा बॉडी क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि ओ ये तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे WBC की ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक that it can recognize between self and non-self, कि कौन मेरा अपना है और कौन बाहर से आया है. तो नाउ लेट अस ड्रॉ. यहाँ पर आ गया अब एक पैथोजन. इसके ऐसे सीन विंग बना देते हैं, बहुत गुस्से में है भाई. ये अब हमारे बॉडी में एंटर कर गया. ये कौन है? ये है पैथोजन. अब ये WBC हमारे खुद के सेल को अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो इसका दोस्त है, ये तो इसका यार है, ये इसको पहचानता है. ओ सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस पे जो रिसेप्टर्स है, वो तो हमारे खुद के बॉडी के, इसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करना. बट ये जो पैथोजन है बच्चा, इसके सरफेस पे भी है, इसके सरफेस पे भी एंटीजन है, बट ये हमारे से डिफरेंट है, हमारे से डिफरेंट है.
तो जैसे ही हमारा WBC इस पैथोजन को देखता है, ओ कुछ तो मिला, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, कुछ तो मिला मेरे को काम करने के लिए, तो ये WBC हाइपर एक्टिव स्टेज में आ जाता है। और ये WBC करता क्या है? It releases a chemical known as antibodies. Releases chemicals known as antibodies. एंटीबॉडीज को शॉर्ट में लिखते हैं AB और एंटीजन को शॉर्ट में लिखते हैं AG। ओके, एंटीबॉडीज बनने लगे, बहुत सारे बनने लगे, और वो एंटीबॉडीज कैसे दिखते हैं? वो हमारे वाई शेप, ऐसे अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं ना, ऐसा हमारा एंटीबॉडी होता है, वाई शेप का स्ट्रक्चर, वाई, आगे पढ़ाऊंगी इम्यूनोलॉजी में। अब ये जो हमारा एंटीबॉडी होता है, समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। नो मैम। ये जो एंटीबॉडी है हमारा, इसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं जो ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। इधर इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? एंटीजन AG, मैंने बताया शॉर्ट में लिखते हैं एंटीजन को, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्या करेगा? ये जैसे ही इधर गया, बहुत सारे आ गए हमारे, ये व्हाइट से बनाया था ना, मेरे बहुत सारे एंटीबॉडी इधर आ गए। ये एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को ऐसे पकड़ सकता है, ठीक है? अगर ये एंटीजन है तो ये एक एंटीबॉडी एक इधर से एक को पकड़ेगा, इधर से एक को पकड़ेगा। इस तरह का नहीं बनाती हूँ तो पकड़ नहीं पाएगा, नॉर्मली ऐसे बना लो, ठीक है? दोनों एक साइड से, क्योंकि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एक एंटीबॉडी जो है वो 2 एंटीजन को ऐसे पकड़ ले रहा है, तो जोर से पकड़ रहा है ताकि अब वो हिल डुल नहीं पा रहा और वो एक जगह स्टेगनेंट हो गया। अभी वो ब्लड में इधर उधर भाग नहीं सकता। अभी वो अगर एक जगह रुक गया है तो हमारे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ऐसे मैक्रोफेजेस आते हैं, ओह आज तो बहुत सारा खाना मिला है, क्योंकि अब वो मूव नहीं कर रहे, उनको हमारे एंटीबॉडी ने जकड़ लिया है, एक जगह पकड़ लिया। बहुत सारे एंटीबॉडी रिलीज हुए, कुछ इधर आके पकड़ लिए, कुछ इधर आके, कुछ इधर आके, घेर लिया चारों तरफ से, घेराबंदी कर दिया, क्योंकि ये हमारे बॉडी का आर्मी है। ओ मैन कमिंग टू यू, पकड़ लिया, नाउ स्टेगनेंट हो गए, मूव नहीं कर रहे हैं। और यू नो द phenomenon of one of the most important phenomenon of your WBC, that they can come out of the blood capillaries by the process of diapedesis। ऐसे ऐसे blood capillaries से निकल के आया, सबको खाना शुरू कर दिया। जस्ट अ मिनट, ओम का कुछ क्वेश्चन है। ओके ओम, अगेन चलो, एंटीजन हमारे बॉडी के सेल पे भी है, बट उसको मेरा WBC पहचानता है। हमारे बॉडी के जितने WBC है वो उसको पहचान रहे हैं कि ये मेरा अपना है, इसके अगेंस्ट वो एक्ट नहीं करते। वैसा ही एंटीजन हमारे पैथोजन के ऊपर भी है, बट वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोटीन से बना हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं ना, अभी जो ये वायरस है, कभी डेल्टा आता है, कभी ओमिक्रॉन आता है, तो वेरिएशन है, म्यूटेशन है। वेरिएशन किस चीज में? सरफेस रिसेप्टर में बच्चा। जब कभी वायरस का डायग्राम पढ़ाऊंगी ना, ऐसा मौका लगेगा कोई किसी चैप्टर में, तो वहां हम दिखाएंगे कि वायरस का जो आउटर सरफेस होता है ना, वहां पे अलग अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़े होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको जब तक हम स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सरफेस रिसेप्टर होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, चेंज कर रहे हैं। अभी जो आपका ये कोरोना वायरस है वो यही तो कर रहा है, जो उसके सरफेस पे रिसेप्टर है ना, जिसको हमने पहचान के उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया, बहुत सारी चीजें की, दवाइयां बनाने की कोशिश की, बट वो म्यूटेबल है, वो चेंज कर रहा है। कैसे चेंज होता है ये सब हम पढ़ेंगे जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना, मतलब इसके बाद जब ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, वहां मैं आपको वायरस कैसे एक्ट करता है वो पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओम का क्वेश्चन, तो ये जैसे एंटीजन आया तो एंटीबॉडी क्या करता है बेटा? एंटीबॉडी तो खाने का काम नहीं करता है, इनगल्फ नहीं करता है, फैगोसाइटोसिस नहीं करता है। मैंने कभी नहीं बताया आपको कि एंटीबॉडी ऐसा करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? ये जो है पैथोजन, इसके सरफेस पे जितने एंटीजन है, जितना जरूरत था उतने एंटीबॉडीज उधर गया, और एक एंटीबॉडी 2 एंटीजेंस को ऐसे पकड़ सकता है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एंटीबॉडीज ने चारों तरफ से डिफरेंट एंटीबॉडीज को पकड़ लिया।
पकड़ लिया तो अभी वो स्टेगनेंट हो गया, वो उस जगह पे ही वो जकड़ लिया, ठीक है, अभी उसको पकड़ लिया, अभी वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे न्यूट्रोफिल्स जो हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो आ रहे हैं और पैथोजन को क्लीन कर दे रहे हैं, इनगल्फ कर दे रहे हैं, डाइजेस्ट कर दे रहे हैं. इज इट क्लियर नाउ ओम? मैम एक बार फिर से रिपीट करिए ना थोड़ा शॉर्ट में. यस बच्चा, मैम एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट करिए ना, मतलब एक बार शॉर्ट में करिए. देखो. अच्छा देखो, एंटीबॉडीज जो है ना, जो हमारा WBC प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारा बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना रहा है, वो जाकर इस एंटीजन को, मतलब पैथोजन को किल नहीं करता है, वो उसको क्या करता है, पकड़ लेता है, जकड़ के एक जगह रख लेता है, ठीक है. ये इम्यूनोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे. पकड़ लिया क्योंकि इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है. मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो तुम्हारा एंटीबॉडी है, जो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, इसके सरफेस पे दो साइट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिससे वो एंटीजन से बाइंड कर सकता है. तो वो यहाँ पर जितने भी एंटीजन प्रेजेंट है पैथोजन के सरफेस पे, सबसे बाइंड करके उसको पकड़ लिया उसी जगह पे. अब क्या करेंगे हम, एंटीबॉडी तो उसको इंगल्फ करेगा नहीं, फैगोसाइटोसिस करेगा नहीं, तो आपके ब्लड सेल्स में जितने भी WBCs प्रेजेंट है जो फैगोसाइटोसिस करते, वो आएंगे और वो उसको इनगल्फ कर लेंगे, डिस्टर्ब डैमेज कर देंगे, सेल डेब्रिस इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको भी मैक्रोफेजेस खा जाएगा. तो दिस इज हाउ कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा WBC, जो हमारा मैचोमैन है बॉडी के अंदर, आर्मी क्रिएट किए हुए इम्यून सिस्टम का, वो एक्टिव हो जाता है. बट हमारे खुद के सेल पे वो एक्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये इसको समझता है, पहचानता है कि ये मेरा अपना सेल है. क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में. ये भी तो एक सेल ही है ना, ये पैथोजन है, ये कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है. मान लो स्टेफाइलोकोकस है, ऑरियस है, पेनिस, कोई भी इंटर किया हमारे बॉडी में, तो इसका जो सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, वो हमारे रिसेप्टर से डिफरेंट है. तो जो हमारा WBC है वो हमारे सेल को बखूबी पहचानता है. ओ, जैसे आपके घर में आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं, आपने पहले उनको देखा है तो आप पहचानते हो, आप वेलकम करते हो. बट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को देखते हो जिसको आप नहीं जानते, तो आप स्ट्रेंजर्स को देखते हो तो घर पे जाके मम्मा को बोलते हो, मम्मा कोई तो आया है, मेरे को पता नहीं कौन है. तो जस्ट लाइक दैट, ये जैसे ही आया तो इसने अपना आईब्रोज ऐसे, ये कौन है, ये तो मेरा अपना नहीं लग रहा, ये है कौन. फिर इसके सरफेस के रिसेप्टर को देखा, ओ ये तो बाहर से एंट्री किया है, ये तो हमारा एनिमी है. तो अपने फोर्सेस स्टार्ट करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट से इसको बाइंड कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है और फ्लो नहीं करने देता, भी ब्लड में पकड़ लिया, और फिर हम हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आके डाइजेस्ट कर देते हैं. क्लियर नाउ? एक मिनट मैम, तो अगर म्यूटेबल वायरस के रिसेप्टर्स ही डिस्ट्रॉय कर दिए तो उसके म्यूटेशन का कोई असर ही नहीं होगा. अगर हमने उसके रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वो वायरस रहा ही नहीं. इतना इजी नहीं होता है. वायरस क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको ऐसे ग्रो ही नहीं कर सकते ना. वायरस ऑलवेज नीड अ होस्ट, उसको होस्ट चाहिए. और वायरस दो तरह से ग्रो करता है, नॉर्मल सेल, नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस के जैसा नहीं करता है. जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगी वहां मैं बताऊंगी कि वायरसेस when they enter our body sometimes they destroy our system, और सिर्फ अपने सिस्टम, अपने मशीनरी से सिर्फ अपने सेल के कंपोनेंट्स बनाता है और खुद को इंक्रीज करता है और हमारे सेल को डैमेज करते जाता है. लाइटिक फाज. और एक होता है लाइसोजेनिक, वो हमारे ही जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के साथ खुद के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को ज्वाइन कर देता है और हम भी ग्रो होते हैं, वो भी ग्रो होता है मजे मजे में, और धीरे धीरे हमारे सेल को डैमेज करता चला जाता है. दिस ऑल वी विल रीड इन डिटेल. वायरस इज अपार्ट. वायरस तो ग्रो ही नहीं कर सकता ऑल अलोन, उसको तो एक होस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे तुम बैक्टीरिया दो, चाहे तुम फंगस दो, चाहे कुछ भी तो देना ही पड़ेगा, वो अकेले ग्रो नहीं करता है. ठीक है ओम? तो वायरस का ग्रोथ का पैटर्न ही अलग है. दैट वी विल रीड इन डिटेल इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. चलो फटाफट ये नोट डाउन करना है, करो, देन आई विल रब द बोर्ड.
तो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द ब्लड ग्रुप, जो क्योंकि हमारा ब्लड का ही चल रहा है, तो अभी नेक्स्ट जो अभी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ब्लड ग्रुप। हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के सेल्स पे तो एंटीजेंस प्रेजेंट ही हैं, बट हमारे ब्लड के भी सरफेस पे, जो हमारा आरबीसी है उसके सरफेस पे भी एंटीजन प्रेजेंट है, जो कि डिफरेंट है हमारे बॉडी के सेल्स से। ठीक है, मतलब हमारा जो बॉडी का सेल है उसके एंटीजन से, जो सरफेस रिसेप्टर था, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ था, उससे डिफरेंट है एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है। सो इन ब्लड ग्रुप वी विल रीड अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच। तो पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, उस आरबीसी के सरफेस पे भी एंटीजन प्रेजेंट है, बट दैट एंटीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन अदर बॉडी सेल्स। बॉडी के जो और डिफरेंट सेल्स हैं उनमें जो एंटीजन है वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ है बच्चा, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बना हुआ है, बट यहाँ जो एंटीजन है ब्लड में, जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है वो डिफरेंट है। आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो दो तरीका का एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अभी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, व्हाई डिफरेंट? जब सारे बॉडी के सरफेस पे एंटीजन है तो आरबीसी के सरफेस पे डिफरेंट एंटीजन क्यों? ये सवाल आया किसी के माइंड में? हाँ, देखो, सिंपल इसकी बात ये हो सकती है, ये तो अभी किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट अगर हमारे आरबीसी पे भी सेम एंटीजन ही प्रेजेंट होता, ठीक है, जो हमारे बॉडी के सरफेस पे है, तो ओम के बॉडी पे, हर्षवर्धन, लीजा, सब में अलग अलग होगा। तो इफ वी नीड ब्लड इन सर्टेन केसेस, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मुझे कोई डिजीज है, मुझे ब्लड चाहिए, तो मैं किसी से भी ब्लड नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि वो सेल जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करेगा, मेरा डब्ल्यूबीसी तो उसके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देगा। बट ये जो एंटीजन हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल है। हम सबके आरबीसी पे दो तरह का ही एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। क्लियर बच्चा नाउ एवरीवन? तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही नहीं कर सकते थे ना, इसी वजह से ये जो है ये सिमिलर है। डिफरेंस है, कोई ए पॉजिटिव, कोई ए हो सकता है, कोई बी हो सकता है, कोई ए बी हो सकता है, कोई ओ हो सकता है, वो क्या डिफरेंस है वो हम आज पढ़ेंगे। बट दो ही एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, मान लो ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे मैं ए बना देती हूँ, ए एंटीजन है इसके सरफेस पे। अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ए। ए, ठीक है, फिर दूसरा बनाते हैं इधर, सेकेंड वन। If on the surface of RBC the antigen present is B, then the blood group is B. ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B. Now, third case. If on the surface of RBC both antigen A और antigen B दोनों ही प्रेजेंट है, A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट, A भी है, B भी है, तो ये क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप। फोर्थ कंडीशन,
कोई सा भी एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ये हुआ तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी एंटीजन सरफेस पे होता है वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होता है, अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। क्योंकि अगर इसके सरफेस पे ए एंटीजन है और इसके प्लाज्मा में एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटी ए एंटीबॉडी होगा, तब तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, वो उसको क्लम्प कर लेगा, पकड़ लेगा, बट वो नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा ब्लड क्लॉट कर जाएगा। सो अगर सरफेस पे ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में नेचुरली देयर इज बी एंटीबॉडी। अगर सरफेस पे बी एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटी ए है, एंटी ए एंटीबॉडी। अगर सरफेस पे ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हैं तो प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीबॉडी होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। पर बताया ना कि अभी एंटीबॉडी आता है और एंटीजन कैसे पकड़ लेता है जकड़ के, तो एबी में कोई सा भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट है। दिस इज योर प्लाज्मा, दिस इज योर आरबीसी, दिस इज योर प्लाज्मा। यहाँ पर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, बट नेचुरली उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी भी होता है और एंटी बी एंटीबॉडी भी होता है। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। इसीलिए तो हम इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, बट इसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पर इस चीज में बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन होती है, ये बात ध्यान से सुनो। मान लो हमें पता है कि ये बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, अगर मुझे इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो मान लो ये बॉटल है, इससे हम कर रहे हैं और ये भी ए ही है, ए ब्लड ग्रुप है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए ब्लड ग्रुप उस बंदे का ब्लड ग्रुप है और हमने ए ब्लड ग्रुप ही उसको दिया है, तो दिस इज द डोनर एंड दिस इज योर रेसिपिएंट। बट अगर ए वाले को ए ब्लड ग्रुप के अलावा और कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें से तुम दे सकते हो? ए पर्सन को, अगर किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, यस, क्योंकि ओ के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। फिर तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा बच्चा, बट इसके प्लाज्मा में तो एंटी ए भी और एंटी बी भी है, तो ये इसके साथ एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं स्पेशली बता रही हूँ आपको कि डोनर के एंटीबॉडी का असर रेसिपिएंट के एंटीजन पे बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मान लो मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है और अगर मुझे चाहिए किसी से ब्लड मुझे ट्रांसफ्यूज करना है तो कितना करेंगे? 100 ml, 200 ml। तो जैसे ही ये 100 या 200 ml ट्रांसफ्यूज होकर हमारे बॉडी में आता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। 5 लीटर और 100 ml डाइल्यूट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है इसका असर इस पे नहीं होता है, ऐसे समझ लो कि डाइल्यूशन हो जाता है। सो अगर मैंने इस बंदे, अगर मुझे ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिला, जस्ट ऐसे कर देती हूँ, अगर मुझे ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिला, किसी रिलेटिव के पास भी नहीं था, ब्लड बैंक में भी नहीं मिला, ए नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? ओ यूज कर लेंगे। क्यों
ओ यूज कर लेंगे। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देती हूँ कि एंटीबॉडी ऑफ डोनर डाइल्यूट्स और इम्पोर्टेंट हो जाता है और कोई भी असर नहीं होता है। ये सवाल बच्चों के माइंड में आता है, तो हम उसको ए दे सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अब हम बी वाले की बात करते हैं। बी वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है? कैन गेट ब्लड फ्रॉम AB and O. ए बी एंड ओ। O. बी तो देगा ही, बी को देगा ही, देगा ना। कैन Yes, sir. ब्लड फ्रॉम, कैन गेट ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ, बी एंड ओ। और ए बी किससे किससे ब्लड ले सकता है? ए बी यूनिवर्सल क्या है? रेसिपिएंट है। वो ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, एंटीबॉडी अगर थोड़ा सा 100 ml का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में एंटर भी कर जाता है तो वो 5 लीटर ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है और उसका एज सच कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। सो I will share. Just a minute, bacha. I'll give you a chance. Let me share one image after this. Just a minute. I'll come back to you. Just a minute. You can see this. Human ABO blood group and their compatibility. Blood group A, B, AB and O. अभी हमने आपको जेनेटिक्स नहीं पढ़ाया है, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत जेनेटिक्स आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। तो बेसिकली जीनोटाइप जो होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे सरफेस पे दो ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, तो जीनोटाइप क्या होगा? एंटीजन ये ए ब्लड ग्रुप का IA और IA, ये छोड़ दो अभी तुम, क्योंकि अभी हमने आपको जीनोटाइप्स नहीं पढ़ाया है। जब भी जेनेटिक्स पढ़ाएंगे वहां पर ये जीनोटाइप्स आएगा। एंटीजन और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? ए में ए है, बट एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा बी है। कैन गिव ब्लड टू, ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। क्यों ए बी वाले को दे सकता है? ए वाला ए ब्लड ग्रुप अगर हम ए बी वाले को एंटर कर दे रहे हैं तो ए एंटीजन को तो ये पहले से ही पहचानता है, ए एंटीजन को पहले से पहचानता है, तो उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और बी एंटीजन जो है ए बी, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है उसका, और ए बी जो है वो रेसिपिएंट है, तो ए बी वाला कैन गिव ब्लड टू सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, क्योंकि ए बी के सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। बट ए बी रेसिपिएंट है तो वो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी एंड ओ। और जो O है उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडीज दोनों ही प्रेजेंट है। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो सारे ब्लड ग्रुप को, वो क्या है तुम्हारा O कैसा होता है? O क्या है? यूनिवर्सल डोनर है या रेसिपिएंट है? यूनिवर्सल क्या है बताओ? डोनर। डोनर है, तो वो सबको ब्लड दे देता है। यस ओम, बताओ बच्चा, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना है, बोलो। मैम आपने बोला कि वो डाइल्यूट हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो ऐसे तो फिर कोई भी ब्लड ग्रुप डाल देंगे तो वो तो डाइल्यूट ही होगा ना 5 लीटर में। नहीं, देखो कोई भी नहीं। अब क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इसको ए देने की कोशिश की, बट हमारे पास ए नहीं है, ठीक है, नहीं मिला, इमरजेंसी है, तो हमने उसको ओ ब्लड ग्रुप दिया। ओ के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और जो ये एंटी ए है और एंटी बी है उसका अमाउंट बहुत थोड़ा सा है, तो वो जब हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो हमारे जो आरबीसीज है उसको इफेक्ट नहीं करता है। बट जब मैं तुम्हें RH फैक्टर पढ़ाऊंगी ना बच्चा, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एरिथ्रोब्लास्टोस। जब भी हम पढ़ेंगे फीटल एरिथ्रोब्लास्टोस, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी कि फीटस
और मदर, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तब क्या प्रॉब्लम होती है वो हम उधर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एबीओ के बाद हम आरएच वाला भी पढ़ने वाले हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो ना, कोई चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अगर 5 लीटर ऑफ मिल्क है, उसमें तुमने 100 ml ऑफ वाटर मिल्क मिक्स कर दिया, तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसमें पानी मिलाया है। तो ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या है? बेसिकली दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। उनको एक्ट करने के लिए, अगर मान लो, ठीक है, मान लिया कि चलो कंप्लीट इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट अगर वो डैमेज करेंगे भी तो थोड़े से आरबीसी को करेंगे ना, और आरबीसी तो हमारे बॉडी में बन रहा है, कुछ ही है 100 ml, बट ये हम इमरजेंसी सिचुएशन में ही करते हैं, अगर हमें ए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं, देयर आर सर्टेन माइनर ब्लड ग्रुप्स आल्सो, उनको भी चेक करना जरूरी होता है, बट हर जगह होता नहीं है। बट आज के डेट में अभी थोड़ा सा इनके लिए सिंसियरिटी स्टार्ट हुई है कि सिंसियर हो गए हैं लोग, करना चाहिए माइनर ब्लड ग्रुप्स भी, बट ये हमारा मेजर ब्लड ग्रुप है। एबी को हम क्यों बोल रहे हैं कि वो सबसे ब्लड ले सकता है? इट्स अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, उन दोनों को वो पहले से पहचान रहा है, ठीक है ना। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और जो हमारा एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पे। अगर वो घूमते घूमते उस आरबीसी के सरफेस पे गया, क्योंकि हमारा डब्ल्यूबीसी जो है वो तो इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम हर, मतलब मैं या फिर अभी क्लास में जो 20 स्टूडेंट्स बैठे, हम सबका ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस है वो सेम है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा। यस मनोली? Ma'am, I was saying that can you please share the image again? Actually, I got disconnected from the meet. Okay. This is the image. You can see here human ABO blood group and their compatibility. तो देखो, मैंने आपको पहले ही समझाने के लिए बोला कि अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगा तो उनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे, ब्लड फ्लो नहीं होगा, एग्लूटिनेट हो जाएंगे। कैन, तो अभी ए है, कैन गिव ब्लड टू, ए किसको किसको ब्लड दे सकता है? ए को दे सकता है एज वेल एज ए बी को दे सकता है। कैन गेट ब्लड फ्रॉम ए से तो डेफिनेटली है लेगा, और जो हमारा ओ है। बट मैं एक बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूं बच्चों कि हम ओ पर भी लास्ट टाइम पे जाते हैं। अगर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, हम पहले यही सोचते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग, अगर ए है तो ए ही मिल जाए, बी है तो बी ही मिल जाए, ए बी है तो ए बी ही मिले। अगर नहीं मिलता है देन वी गो विद द पर्सन्स हैविंग यूनिवर्सल डोनर, दैट इज द ओ ब्लड ग्रुप। बट वहां पर भी ओ पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ा है, वो आरएच से आता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, बट एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा ए और बी दोनों ही होता है, और इसको हम यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीजन इसके सरफेस पे कोई सा भी नहीं प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज, जस्ट अ मिनट, अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज और बताऊंगी तो तुम्हें बड़ा अजीब से लगेगा। नेचुरली जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ना एंटी ए होता है ना एंटी बी होता है। बट मैं इतने डीप में अभी आपको लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि लीजा, इट्स अ रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, किसकी, विद्या बालन की, इफ यू रिमेम्बर। नहीं मैम, नहीं देखा था। द कल्प्रिट कहानी नाम थी उस मूवी की, कहानी, आई रिमेम्बर। वहां पर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप का डिस्कशन हुआ है। दिस इज द रेयर ब्लड ग्रुप, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, जो फर्स्ट टाइम जिस पर्सन में रिकॉग्नाइज किया गया था वो बॉम्बे को बिलोंग करता था, इसलिए उसकी नेमिंग कर दी गई थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत थोड़े से पर्सन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये भी जीनोटाइप है, जीन से रिलेटेड है, मल्टीपल एलिलीज होते हैं। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, आप हमें आपको पढ़ाएंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी जीन से रिलेटेड होता है, एंड इट्स अ मल्टीपल एलिली। ऐसे तो हर जीन के सिर्फ 2 एलिलीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट इसके 3 होते हैं। मल्टीपल एलिलीज में हम ये पढ़ेंगे जेनेटिक्स में फिर से।
एक मिनट. Then why does it included in book? अच्छा, कौन से बुक में आपने देखा बच्चा? हमें तो बेसिकली ABO एंड RH ये दोनों ही सबसे मतलब क्या बोलूं ज्यादा मिलता है, और ये दोनों ही ब्लड ग्रुप जो है हमारे नीट के लिए या फिर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए ये दोनों ब्लड ग्रुप ही इंपॉर्टेंट हैं. तो हम ABO और RH ही पढ़ते हैं. इसके अलावा बहुत सारे माइनर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है. और इसमें क्या होता है, जो ये A मैं बताऊंगी कभी आराम से. यस ओम. मैम अगर ये जो भी एंटीजेंस है और एंटीबॉडीज है, ये अगर मतलब ये जीनोटाइप से, तो फिर इनका इवोल्यूशन होता होगा तो टाइम के साथ बढ़ जाएंगे क्या ये? मतलब बदल बोला ना, वैरायटी आ बहुत जाएगी? सारे माइनर ब्लड ग्रुप्स भी हैं जो अभी धीरे धीरे हमने देखना शुरू किया है. और जो अभी आज के डेट में जो अच्छे वाले लैब्स है ना, वो सिर्फ ये ए बी और ओ को टेस्ट नहीं करते. बहुत सारे, अभी जैसे लीजा का क्वेश्चन था ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, उसके उस बंदा जो था ना, उसमें ना A एंटीजन था ना B एंटीजन था, एक डिफरेंट टाइप का म्यूटेटेड एंटीजन था, दैट इज H एंटीजन. गेटिंग माय पॉइंट होम? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर ना, इट्स कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक्स, जीनोम है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है. और माइनर भी है बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स. ये जो माइनर वाले लोग होते हैं ना, इनका एक लिस्ट बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे वो जो मूवी है ना, वो देखना कभी मिले टाइम तो, कहानी वो ब्लड ग्रुप पे ही बेस्ड है एक्चुअली. रिकॉर्डिंग बंद कर दो.